Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your biology class, and the topic that we are going to cover today is gaseous exchange in plants. Before we start reading this topic, let us discuss that what do we mean by the gaseous exchange, or why is it even important. Students, I hope all of you know that oxygen is required for all living things, whether they are plant, whether they are animals, or whether they are microorganisms. They need oxygen to carry out their life activities. Our body cannot produce energy. We need energy for each and every life activity, and our body cannot produce that energy without constant supply of oxygen. This oxygen is present in air, in the atmosphere. We inhale, we breathe in that oxygen. And when our body produces carbon dioxide, it produces energy. It also produces carbon dioxide alongside with it. So the carbon dioxide that is produced is exhaled or given out of the body. This exchange of the gases in which oxygen enters the body and carbon dioxide comes out of it is called the gaseous exchange in the bodies. Gaseous exchange is very important for the survival. If the constant supply of oxygen is interrupted, a person or the individual or the living organism may not be able to survive it. So in this chapter, in this video, we are right now going to discuss how are gases exchanged in plants. Now the gaseous exchange in plants is different from how gases are exchanged in the body of animals, because for the animals they have special breathing organs. एनिमल्स सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब वो सांस बाहर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. बट दिस इज़ नॉट द केस विद द प्लांट्स. प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मीन ख़ास ऑर्गन्स जो सिर्फ सांस लेने के लिए जिनका सिर्फ यही काम हो. सो हाउ डज plants exchange their gases? The answer is that every cell in the body of the plant, it exchanges the gases with the environment. It gives out the gases and then it also takes in the gas. The leaves and the young stems have stomata in their epidermis. Epidermis is the अपर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट. प्लांट्स की लेयर्स होती हैं, उनकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मस कहते हैं. एपिडर्मस ने प्लांट की बॉडी को पूरा कवर किया हुआ होता है. तो जो लीव्स होते हैं उनकी उल्टी साइड पर और जो यंग स्टेम्स होती हैं जो कि अभी हार्ड वुड नहीं बनी हुई होती, उनके ऊपर एक स्मॉल पोर्स लाइक देयर आर स्मॉल होल्स ऑन दैम. दे आर कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा इज़ लाइक a building in a window in the building. जैसे हम एक रूम के अंदर विंडो ओपन करते हैं तो उससे फ्रेश एयर अंदर आती है और यूज्ड एयर बाहर जाती है. इन द सेम वे द नेचर हैज़ पुट द स्टोमेटा ऑन द बॉडी ऑफ द प्लांट. बिकॉज ऑफ दीज स्टोमेटा ऑक्सीजन एंटर्स और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द प्लांट एंड ऑक्सीजन कम्स आउट ऑफ इट. द इनर सेल्स ऑफ लीफ की जो इनर सेल्स होते हैं, जो ग्रीन कलर की लेयर होती है, उसे मीज़ोफिल कहते हैं. मीज़ोफिल के अंदर ही क्लोरोफिल भी होता है. अब मीज़ोफिल के अंदर द डायग्राम इज़ मेड हियर, यू कैन सी इट. हियर इज़ द मीज़ोफिल, द सेकेंड लेयर, एंड देन दिस इज़ द स्टोमेटा. लीफ की सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर देयर आर स्मॉल होल्स, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा. एंड इन दिस स्टोमेटा फ्रॉम हेयर एयर एंटर्स inside and then air leaves the body of the plant. Here is the point that we have already discussed, that organisms need oxygen in the form of the ATP for their life activities. ATP stands for adenosine triphosphate. In the young stems and the leaves, some gaseous exchange also occur through the cuticle which is present over the epidermis. एपिडर्मस के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं एंड दैट इज़ ट्रांसपेरेंट इन कलर. उसका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होती है. उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम रेन से.
यंग प्लांट्स के अंदर क्योंकि क्यूटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर जब प्लांट यंग होता है और लीव न्यू होता है तो थोड़े बहुत गैशियस एक्सचेंज उससे हो जाती है, लेकिन जब प्लांट की बॉडी ग्रो करके मेच्योर हो जाती है तो फिर क्यूटिकल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज नहीं होता। लीफ सेल्स फेस टू सिचुएशन। अब प्लांट को दो तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सनलाइट इज़ अवेलेबल एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ हैपनिंग। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट के बगैर नहीं हो सकता। सो ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन द सनलाइट इज़ नॉट अवेलेबल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सनलाइट इज़ अवेलेबल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअस। तो दिन के टाइम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन गैस बन रही होती है, तो उस ऑक्सीजन गैस का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा प्लांट के सेल्स यूज़ कर लेते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज आई ऑलरेडी मैंशन दैट लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो उसी ऑक्सीजन का थोड़ा सा हिस्सा प्लांट खुद यूज़ कर लेगा और उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और बाकी की ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी से बाहर आ जाएगी, एंड दिस इज़ द सेम ऑक्सीजन दैट वी यूज़ फॉर द ब्रीदिंग। फिर जिस वक्त प्लांट ने उस ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाई तो अलॉन्ग साइड विद द एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। डे टाइम में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी से बाहर नहीं आती, वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही दोबारा यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, और वो दोबारा से यूज़ होकर ऑक्सीजन बन जाती है। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम सिंस द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर अ वाइल, क्योंकि सूरज नहीं होता, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट की बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है और प्लांट की बॉडी ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करना स्टार्ट कर देती है। दैट इज़ वाई वी आर supposed to stay away from the plants during the night time, because they are inhaling, they are using the oxygen from the atmosphere and they are giving out carbon dioxide. But during the daytime plants give out oxygen and they use carbon dioxide. So these are the two things that are opposite to each other, that during daytime plants use carbon dioxide and give out oxygen, but during the night time they use oxygen and give out carbon dioxide. इन वुडी स्टेम्स मीन ओल्ड प्लांट, ट्रीज़ लाइक जो सख्त जिनकी शाखें हो चुकी होती हैं, एंड मेच्योर रूट्स और जो पुराने दरख्तों की पुरानी जड़ें होती हैं। द एंटायर सरफेस इज़ कवर्ड बाय द बार्क बनी हुई होती है, लकड़ी जो होती है वो डेड सेल से बनी हुई होती है, विच इज़ इम्प्रीवियस टू गैसेज और वाटर। इम्प्रीवियस मीन गैसेज एंड वाटर कैन नॉट एंटर थ्रू इट। However, there are certain pores in the layer of bark. These are called lenticles. bark के अंदर ऑक्सीजन गैसेस या वाटर एंटर नहीं हो सकता, बट देर आर स्मॉल होल्स, लेकिन उसके अंदर कुछ मकामात पर स्मॉल होल्स होते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड लेंटिकल्स। द लेंटिकल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम। लेंटिकल्स से होती हुई तो एयर अंदर चली जाती है। गैस डिफ्यूज़ का मतलब द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन इज़ द गैस एंटर्स इन द प्लांट बॉडी। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। In the soil, the oxygen gas is present and the roots absorb oxygen from the soil. The aquatic plants are those plants that are found inside the water, get the oxygen dissolved in water. तो पानी के अंदर रहने वाले पौधे पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई हुई ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं and release carbon dioxide in the water. Here is the picture of the lenticles. You can see this is a tree, and on this tree there are these white spots. These white spots are actually lenticles. These are holes, and from these holes gases and water vapors will enter into the plant body. So this was all about today's topic. Today we learned that how do gases enter in the plant body, and in today's lesson we learned that there are pores on the body of the plant. They are called stomata. Gases enter from those stomata. फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि during the daytime plants produce oxygen and they absorb carbon dioxide from the atmosphere, but during the night time they give out carbon dioxide और वो oxygen absorb करना start कर देते हैं. And then we read that in the old plants, in the big trees, there is a bark in which gases or water vapors cannot enter,
बट देयर आर स्मॉल होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बार्क, दे आर कॉल्ड लेंटिकल्स, और उन लेंटिकल्स के अंदर से गैसेज और वाटर वेपर्स एंटर हो सकते हैं. So this was all about today's topic. Please go through it, and in case of any difficulty you can always tell me. Thank you students. Take care.